والن سیاسی لیڈرن پز پوت کال یاد کرن بندوق انت کیان گرن ہند ژنگ ژھت کرن ول ہیکن ہمدرد ٲسِتھ عمر عبداللہ ووٹنگ عملہ مز لوکن ہند بڑھت تو بولت حصہ نیون سٹھے رُت سرینگر لوک سبھا نشستس پہ سپزمچ ووٹنگ ست کامیابی ہند امیدوار وحید پرا چیمر کلگام کے لوکو طرف ناراضگی ہند اظہار انتظامیہ سڑکیں ہند شہر پر کرنچ لوکو مانگ السلام علیکم ناظرین رات ہز 9 بجے تو قشر خبر نامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل نیشنل کانفرنس پارٹی طرف یہ آج شمالی کشیر ہندس ٹنگمرگ تو پٹن علاقن مز چناو جلسن ہند سانز کرنا آو تت پارٹی نائب صدر تو امیدوار عمر عبداللہ ات موقع پہ وونمت یم سیاسی لیڈر آز نوجوانن ہز رہائی ہز کت کران تمن پز پنس پوت کالس کن نظر تراؤن تکیاز تمو کشیر مز بندوق انت کیہن گرن ہند ژنگ ژھت کرمت وقت میں اور فاروق صاحب گواہ ہیں، یہ میرے ڈی سی تھے سری نگر میں جب میں وزیر اعلیٰ تھا. ہم نے یہ بلیک لسٹ کا سلسلہ ختم کیا تھا. ہم نے کہا ملیٹنٹ کا بچہ ملیٹنٹ نہیں ہے، ملیٹنٹ کا داماد ملیٹنٹ نہیں ہے، ملیٹنٹ کا پوتا ملیٹنٹ نہیں ہے. آپ صرف اس چیز کے لیے کسی کو سزا نہیں دے سکتے ہو کیونکہ ان کا کوئی رشتہ دار ملیٹنٹ تھا. لیکن ان لوگوں نے وہ جو ہے بلیک لسٹ کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا. ہم نے پار سے یہ جو لوگ گئے تھے ٹریننگ کرنے کے لیے لیکن بندوق لے کے واپس نہیں آنا چاہتے تھے، ہم نے ان کے لیے راستہ کھولا نیپال سے. دیکھیں آپ، جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک فرد کے لیے نہیں کرتے، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ایک کے لیے نہیں کرتے، ہم جب کرتے ہیں تو سب کے لیے کرتے ہیں. ہم نے جب یہاں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کھولے، جب ہم نے یہاں بلاک بنائے، تحصیلیں بنائی، نیابتیں قائم کی، وہ کسی ایک کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں تھا، وہ پورے قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھا. آج ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جو ہے وہ جیل میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کن کن کا میں ذکر کروں جن کو جموں کشمیر کے باہر جیلوں میں رکھا گیا ہے، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے ان کے خلاف، بس اٹھا کے پہنچا دیا ہوا ہے باہر. ہم جب بات کریں گے تو ان سب ہزاروں نوجوانوں کے لیے بات کریں گے جن کو وہاں جیل سے نکال کے ہم نے یہاں واپس لانا ہے. پارلیمنٹ میں ممبر بھیجنا ہے تو نمائندہ وہ بھیجئے جو پارلیمنٹ کے اندر جا کے بات کر سکے، جو وہاں آپ کے جذباتوں کی ترجمانی کر سکے، جو آپ کے لیے لڑ سکے. اور اس لڑائی میں جس لڑائی کا ذکر سدوترا صاحب نے کیا، جس لڑائی کا ذکر مونگا صاحب نے کیا، جس لڑائی کا ذکر فاروق شاہ صاحب نے اور شوکت میر صاحب نے کیا، اس لڑائی میں یہ لڑائی ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے. ہم نے اس لڑائی میں اور دوستوں کو شامل کرنا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نیشنل کانفرنس کے امیدوار کو یہاں سے کامیاب کر کے، تاکہ نہ صرف جموں کشمیر کی جیلوں میں ہزاروں ایسے ہیں جو ریاست جموں کشمیر کے باہر آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ جائیں اور ان جیلوں میں اپنے بچوں کو ملیں. عدالت میں مقدمہ لڑنا تو دور کی بات. یہ ہم نیشنل کانفرنس والے کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایک کی نمائندگی نہیں کریں گے، ہم ان تمام ہزاروں کی نمائندگی کریں گے جو ان جیلوں میں بند ہیں. ان کو ہم ان جیلوں سے چھڑوا کے یہاں واپس لانے کا کام کریں گے. میرے نوجوان بھائی جن کو سی آئی ڈی کے ویریفیکیشن پہ آج تنگ کیا جاتا ہے، یہ پاسپورٹ لانے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آپ کی سی آئی ڈی ویریفیکیشن نہیں ہوگی. یہ سرکاری نوکری لینے جاتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے آپ کی سی آئی ڈی ویریفیکیشن نہیں ہوگی. آپ بینک لون لانے جاتے ہو، آپ کو کہا جاتا ہے. اور قصور کیا؟ قصور ان کا اتنا ہی کہ ان کا کوئی دور دراز رشتہ دار اس نے 90 میں بندوق اٹھائی. ارے ناب 90 کے حالات میں تو سب بہہ گئے تھے. میرے خلاف جو سیب لے کے گھوم رہا ہے، کیا اس کے والد صاحب نے اس وقت ملٹن کی تنظیم کھڑی نہیں کی؟ کیا انہوں نے اس وقت بندوق نہیں لائے؟ کیا یہاں کے نوجوانوں کو ان کے ہاتھوں بندوق نہیں دی گئی؟ اگر اس کے پاس پاسپورٹ ہے، اگر اس کو بینک کا لون مل سکتا ہے، اگر وہ حکومت میں بی جے پی کے کوٹا میں وزیر بن سکتا ہے، تو میرے نوجوانوں کو پاسپورٹ کیوں نہیں؟ میرے نوجوانوں کو بینک لون کیوں نہیں؟ میرے نوجوان ساتھیوں کو سرکاری نوکری کیوں نہیں؟ یہی تو مصیبت ہے. ہم نے سختی، تباہی، بربادی، مایوسی، ان چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. لیکن علاج آپ کے ہاتھ میں ہے.
आपको जरा सी मेहनत करनी होगी। आज जितनी मेहनत आपने इस जलसे के लिए की, उससे कई गुना कम आपको मेहनत करनी होगी जब आप 20 तारीख को पोलिंग बूथ में जाके अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके यहाँ से उम्मीदवार हजबल अनंतनागस में आज PDP तरफ चुनाव जलसुक सांस करना आमुत यथ पार्टी लीडर वहीद रहमान परा तो दमो लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये लूकन वन आव तम गन पार्टी उम्मीदवार सन्दस हकस मज वोट दिन तत वहीद रहमान परान वोनमुत यमे हिसाब श्रीनगर पार्लिमानी नशस्तस पे लूको तरफ बढ़ित तो बूलित वोटिंग अमल मज हिस्सा नित पन वोट दित तम समन उम्मीद तिम जैनन बार अक्सरियत सान। लोगों में कहीं ना कहीं यह है कि पिछले 5 सालों में जब टफेस्ट टाइम कश्मीर को था तो बात की जमात ने किस लीडर ने की, वो हमें हर जगह नज़र आता है। आपने साउथ कश्मीर में देखा, इससे पहले पुलवामा शोपियां सेंट्रल कश्मीर में जो लोग बढ़ के चढ़ के पार्टिसिपेट हुए जी, उसमें PDP का एक अहम रोल है। नौजवानों जो उमंग है, उम्मीद है PDP की तरफ जी। हम कोशिश करते हैं, आज हम इधर आए हैं इलाके में, कोई रैली मीटिंग वगैरह नहीं, अचानक ही कुछ काम से ही आए तो, बट लोगों में हम ये पैगाम देना चाहते हैं इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो आवाज़ है, नायक जी की आवाज़ है, वो नई दिल्ली के ऐवानों तक पहुंचनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये जो खामोशी है इसको ब्रेक करने के लिए ये लगना चाहिए कि हमारे लीडर, हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुँच गई है। और इनमें तो 5 साल से चल रहा था, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, सबको पता है कि वो लोग उनको हेल्प करते हैं, ये एक दूसरे का काम करते हैं। लेकिन हम कहते हैं अच्छी बात है, वो खुल के उन्होंने किया और ज़्यादा खुल के करना चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए, लोगों को भी पता चलना चाहिए। बाकी आवाम तक है, हम कोई इल्ज़ाम उन पर भी नहीं लगाते हैं, चाहे वो BJP हो या उनके अलाइज हो। हम कहते हैं यहाँ की आवाम को देखना चाहिए कि आपके बच्चों की तर्जुमानी, आपके बच्चों की नुमाइंदगी, आने वाले कल की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर में क्या महबूबा जी करनी चाहिए, आपके बच्चों के लिए वो आपकी लीडर होनी चाहिए या फारूक अब्दुल्ला होना चाहिए या अल्ताफ़ बुखारी जैसे लोग होने चाहिए, ये यहाँ की आवाम को फैसला करना है उस वक्त जब वो EVM तक पहुँचे। और जो उनके दिल की राह हो, जो उनको लगे जहाँ उनको कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ है, हमारे बेटों का, हमारे बच्चियों का फ्यूचर सेफ है, उस लीडर को मदद करिए। और इसीलिए हम PDP के लिए वोट नहीं मांग रहे, हम कहते हैं आप अपनी आवाज़ के लिए देखिए कि आपको कौन लगता है पिछले 5 सालों में जब कश्मीर के मकान डिमोलिश होने वाले थे, जब जहाँ पर घुटन हो गई थी, जब आपके बिजनेस पे रेट, जब आपकी इंडस्ट्रीज खत्म होती, जब आपके माइनिंग का लूट होता है, जब आपकी ज़मीन का लूट होता है, जब आपकी रेत का रूट होता है, जब आपके रोज़गार का रूट होता है, तीन बड़े स्कैम्स हुए हैं एम्प्लॉयमेंट के हर वक्त, जब नौजवान कश्मीरी राजस्थान में, जोधपुर में, यूपी में बंद है, कौन बात करता है? और अगर आपको लगता है महबूबा जी मुसलसल बात करती है तो आप हमारे अपने यहाँ लोग इस इलाके में उन्होंने PDP बनाई है, यहाँ के लोगों ने मुफ्ती साहब का साथ उस वक्त दिया जब बहुत कम लोग सियासत समझते थे। तो हम यहाँ की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, हम उम्मीद करते हैं इस वक्त वो अपने कल के लिए, कश्मीर के लिए, आने वाले अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए महबूबा जी को साथ देंगे ताकि ये आवाज़ नई दिल्ली के ऐवानों में गूंजे और जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ अनंतनागस में चुनाव रैली हूं सांस करना आमुत यथ मज अब्दुर्रहीम रथ अलाव दमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये लूकन वन आव तम गन अपनी पार्टी हंदिस उम्मीदवार सदस हकस मज वोट दिन तत वन आमुत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लूकन हज तर्जुमानी करान तो तिमन उम्मीद लूक कर तिहंदिस हकस मज पन वोट। यम सान जज्बातन कम हेवान अस नश वोट हासिल कर पत पन आशो अशरत करान और लूकन हंद तकालीफ खुशरावान अस वुच यह कि अगर जम्मू कश्मीर के लूकन म्यूल सह म्यूल तकलीफ, गुर्बत, बेरोजगारी, सान नौजवान खतर जेल, सान खतर कैद, सान नौजवान गोलियों मेरी गुजारिश की बैठ के निशानस पे जफर इकबाल मनहाज सब कैंडिडेट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बंडपुर में आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांस करना आमुत यथ मज यासिर ऋषि तो दमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये लूकन वन आव तम गन पार्टी उम्मीदवार सन्दस हकस मज वोट दिन तत यासिर ऋषियन अत मौके पर मरकजी सरकार मांग कर्म जमात इस्लामी तंजीम पे आयद करना आमज पाबंदी हटाने हवाले गसन संजीद कदम तुलने युत जन तिम इन वाले असम्बली इंतखाबन मज
हिस्से नियन। मुझे बड़ी हमदर्दी है उनके साथ, क्योंकि उसके बेटे के साथ वही जानता है जिसका बाप बंद होगा। लेकिन ये भी मुझे उम्मीद है कि वो कम से कम हम अब ये सोचेंगे, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर झूठी सियासत की है, वो अब नहीं करेंगे हम। उन्होंने भी बहुत बार झूठ कहकर वोट लिए हैं। इनसे मेरी इस बच्चे से, मेरा छोटा भाई है, उससे यही उम्मीद है वो लोगों को वो बात नहीं कहेंगे जो झूठ होगी। ऐसा नहीं है कि वोट डालने से जेल से नहीं छूटते हैं। अगर वे वोट डालने से जेल से छूटते तो मुख्तार हुसैन अब्बास अंसारी जो है वो छूटता। वो 2 बार तो जेल से उसने इलेक्शन जीता था और भारी अक्सरियत से जीता था, वो तो नहीं छूटा। या अरविंद केजरीवाल जो अभी भी बंद है, जो बंद थे, वो छूटते, वो एज अ चीफ मिनिस्टर उसको गिरफ्तार किया गया। ऐसा नहीं है। हाँ, एक दर्द तो है उनको, उसको वो रिहा होना चाहिए, उसके साथ हम भी है। लेकिन वोट डालने से अगर होगा तो ऐसा है नहीं, जो मुझे लग रहा है कि ऐसा है मेरे हिसाब से तो ये तो है नहीं कहीं की। तो मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे बाकी पॉलिटिशियन ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक यहाँ पर लोगों को झूठ कहा है, वैसे ऐसी बात वो नहीं करेंगे जिससे लोगों को बहकावे में आ जाएंगे, लोग जज्बाती हो जाएंगे। ऐसी बात वो नहीं करेंगे। वो बात तो सही, उनको रिवोक होना चाहिए। जो उनके ऊपर कदगन लगाया गया या बैन लगाया गया, वो तो गैर कानूनी और गैर आईनी है। हम तो उसके साथ है कि उनको हटाना चाहिए। फिर उनकी बात मर्जी है, वो इलेक्शन में हिस्सा ले या ना ले, ऐसी उसकी तो उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा मामला है, हमारी गुजारिश, हम भी इसके साथ खड़े हैं कि उनके होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर आ रही है, और जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है एक तो वो उनको लेनी है, और कुछ डेलीगेशंस के साथ वो मिल रहे हैं। कल बिल्कुल अमित शाह जी वारद कश्मीर होंगे, मुख्तलिफ डेलीगेशंस के साथ वो मिलेंगे, और कुछ जो खासकर उनके आने का जो मुद्दा और मकसद है वो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है। सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के लिए कल देश के होम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से यहाँ वोट टर्न आउट हुआ है, और पहली बार न कोई हड़ताल की कॉल हुई है, न कोई ग्रेनेड चला, न कोई पत्थर चली, और बहुत बड़ी तादाद में लोग कल निकले। इसलिए होम मिनिस्टर कल आ रहे हैं श्रीनगर के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करने, उनको मुबारकबाद देने के लिए। और जहां तक सिक्योरिटी की, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उन्होंने पुरफिजा माहौल में जो ये इलेक्शन का पहला फेज़ कश्मीर में हुआ उसको मुनक़्क़िद कर रहे हैं। उसके लिए कल अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं। देखिए, उसमें कुछ गुजर, पहाड़ी, बकरवाल, सिख, ट्रेडर्स, कॉमर्स वाले या इंटेलेक्चुअल्स और पार्टी का भी एक डेलीगेशन उनसे मिलने जा रहा है। उनका कोई सियासी ऐसा दौरा नहीं है, और वरना इलेक्शन के माहौल में रैलियां होती है, वो महज सिक्योरिटी रिव्यू के लिए आए, कोई सियासी पॉलिटिकल दौरा उनका नहीं है। वो उनका जो है हिरपुर शुपियनस मज आज महकमे वाइल्ड लाइफ तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया तरफ मुश्तरक पे तकरीब साज कर आमुत, यथ मज जिम्मेदारों, अहदारों तो एहलकारों अलावा मुख्तलिफ स्कूलन मज ज़ेर तलीम तलब इल्मो शिरकत कर। अत मौके पे चरिंदन तो परिंदन हवाले कथन दल दिन आव, तत जानवरन हिंजन तहफुज गहन हवाले ते कथन दल दिन आमुत। ये जन अत मौके पे मुसविरी मुकाबल साज कर आव, तो यप जिम्मेदारों तरफ वन आमुत चरिंदन तो परिंदन हुंद तहफुज यकीनी बनाने बापत यथन प्रोग्रामन हुंद साज कर तो अत दौरान आम लूकन ते मुकम्मल जान दिन। अस्सलाम वालेकुम, मैं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया से तनुश्री श्रीवास्तव। मैं यहाँ पर आज हमने हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन और नेचर वॉक ऑर्गेनाइज किया है। ये जो इवेंट है ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इवेंट हो रहा है। पूरी दुनिया में हर जगह जो लोग जंगली जानवरों को बचाने की कोशिश करते हैं वो अपने अपने जगह पर इवेंट कर रहे हैं और वर्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 24 घंटे का इवेंट है। हर जगह जहाँ लोग काम कर रहे हैं जंगली जानवरों को बचाने में, तो वो अपनी अपनी जगह छोटे छोटे इवेंट्स कर रहे हैं और उनको अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी है तो लोग अपलोड कर रहे हैं उसी के थ्रू। तो ऐसे ही हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने इन स्कूल के बच्चों को बुलाया है हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। हमारा मेन मकसद ये है इवेंट करने का कि आजकल के बच्चे एक्सपोज नहीं हैं जंगल से, जानवरों से, तो इसके थ्रू ये आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास भी जंगली जानवर है, हमारे पास क्या चीज़ें हैं बचाने के लिए। तो इसलिए इनको ड्राइंग कंपटीशन है। ये आज मारखोर बना रहे हैं। हम बेसिकली मारखोर कॉन्जर्वेशन और हंगुल कॉन्जर्वेशन पे काम करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और हम पिछले 20 सालों से इस पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हमेशा रहा है और इसकी वजह से हमने काफ़ी सक्सेस हासिल की है मारखोर को बचाने में यहाँ पर। और आज हमारे साथ जो हमारे पार्टनर्स हैं, इवेंट पार्टनर्स, वो डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर से हैं।
हमारे वार्डन साहब हैं शोपियान, डॉक्टर मिस्टर सुहेल वागे, हमारे रेंजर साहब हैं और हमारे फॉस्टर साहब, एवरीबडी हैज़ पार्टिसिपेटेड, सबने मिलकर पार्टिसिपेट किया है। हमारे इवन डीसी साहब ने भी हमें हेल्प की है, जिस डीसी साहब शोपियान, और हमारी एसएसपी मैडम भी आएंगी, उन्होंने भी हमें काफ़ी हेल्प किया है। सो शुक्रिया, और हम चाहते हैं कि ये बच्चे आज कुछ सीख के जाएँ यहाँ से। चीमर कुलगाम के लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमद यदवे मकामी सड़कें हज खस्ता हली हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमुत यम किन चीमर अत अंद पक इलाकन मज रोजन वालन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़कें हज शहर पर हवाले गसन संजीद कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। खुद अहमदाबाद रोजान सर ये जबरदस्त प्रॉब्लम गसान ये दोब सही ये बन पकुन कहीं वह अगर और क्या डिलीवरी पेशेंट कह प्रॉब्लम सही गसान ये दोब सही पड़न सर अत गोस कह गसन क्या प्रॉब्लम ये सर गसान अंद मंद सरसन ये बाकी मसला मगर प्रॉब्लम ये सही पे। मोन नाव गुलजार अहमद मीर बस रोजान अहमदाबाद जनाब गुलिस्तान सठा शुक्र गुजार यम जन विज विज न्यूज करान आम लुकन हूँ यम जन मुश्किलात तो अर्ज जनाब ये बार बार पकान ये सास बद पकान दोहस मगर रोड बनावन अगर 4 किलोमीटर ठीक करान 1 किलोमीटर या मीटर 50 तम यम दोब थावन यम सत प्रॉब्लम लुकन गसान डिलीवरी गसान बेमार तिमन तक प्रॉब्लम गाड़ियन तक प्रॉब्लम ऑलरेडी पे एक्सीडेंट गसान यमो चीजों सो रिक्वेस्ट करान गवर्नमेंटस कि अगर यमो करान यम जन नोम यम दोब अफसर ये पकान अफसर वुचान पे अच्छो मगर करान कहें यमन पे कुन ध्यान दिन गवर्नमेंटस कि ये प्रॉब्लम इलाकस मज या डिस्ट्रिक्स मज यम चीज पे कर मामूली दोब प्रॉब्लम गसान। ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान तंजीम हिंदो जिम्मेदारों तरफ वन आव जमात इस्लामी जमहूरी अमल मज हिस्स निन बापत तैयार, ताहम जरूरी मरकजी सरकार तरफ यह तंजीमस पे आयद कर आम पाबंदी हटाने ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव मरकजी सरकार समें हवाले कत बात जारी। कोई हकीकत नहीं है, हम अपने बलबूते पर खड़ा हैं और हम मरकज़ के साथ बात कर रहे हैं, अपनी बैन हटवाना चाहते हैं और अपना रोल प्ले कराना चाहते हैं समाज में। करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब जमहूरी अमल पर हमारा यकीन है, हमारा ईमान है उस पर, तो होगा, हिस्सा लेना ही पड़ेगा जैसे पहले लेते थे हम हिस्सा। हमने इसको लिए बुलाया था कि एक थ्रेट आ गया है, किसी लेटर हेड को लिया गया है, उस पर लिखा गया है कि जमात का ये जो ये खेल है, ये वोट डालना वगैरह, इसका कोई किसी बुनियाद नहीं है, इसका शूरा की सैंक्शन नहीं है, मरकज़ी शूरा की सैंक्शन नहीं है। तो इसीलिए हमने बुलाई कि ये सब झूठ पर मबनी है, हमारे साथ शूरा है, हम डट के जमहूरी अमल में हिस्सा लेना चाहते हैं, इसके बगैर किसी माशरे में कोई दूसरा हाल। चित्रागाम शुपियनस मज आज CPIM तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज मोहम्मद यूसुफ तारगमी तो दोमियो लीडरों अलाव वर्करन हिंद बड़ी तादाद शिरकत कर। कई मामलात को लेकर, कई मजबूरियों को लेकर, लेकिन PAGD का पस मंज़र यही है जो कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया एक तरफा तौर पर, और हमारी नज़र में वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक दायरा जो मुकर्रर था मुल्क में, जिसमें हमारे हुकूक भी शामिल हैं जम्मू कश्मीर के आवाम के, उनके साथ खिलवाड़ किया गया। दिशा यही होगी कि सरकार को बावर किया जाए, मुल्क के अवाम को जो गलतफहमियाँ हैं, जो गलतफहमियाँ पैदा की गई हैं, उनको दूर किया जाए, मैक्सिमाइज़ की जाए एफ़र्ट्स हर सतह पर, जम्मू के लोगों को भी साथ रखा जाए, लद्दाख के लोगों को भी शामिल किया जाए, ताकि जो हम पर एक आंच आई, हमारे हुकूक पर जो खिलवाड़ किया गया, हमारे आइडेंटिटी पर, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उन पर,
ताकि वो बहाल हों। और तारीख मैंने शायद आपको बताया, आज क्या है मैं आज की ताबीर ही बताऊंगा। आने वाले वक्त में क्या होगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। एक कसौटी है आवाम की, उस कसौटी पर आपको भी परखा जाएगा, मुझे भी परखा जाएगा, हर एक को परखा जाएगा। लेकिन आज इंडिया ब्लॉक, मेरे यार मैं इंडिया ब्लॉक की बात करता हूँ। PAGD एक इलेक्टोरल प्लेटफार्म न था न है, एक बात। दूसरा, जहाँ तक एक प्लेटफार्म इलेक्टोरल प्लेटफार्म का ताल्लुक़ है, चूँकि पार्लियामेंट के चुनाव हैं, पार्लियामेंट के चुनाव को देखते हुए इनकी अहमियत को, जो हमारी नज़र में अनप्रेसिडेंटेड हालात हैं, उसी तनाजुर में देखकर आज के चुनाव की अहमियत भी गैर मामूली है। और प्लीज़ आप प्लीज़ सुन लीजिए ना, ठीक है सर, हैव सम पेशेंस। मैं यही कहता हूँ, इंडिया ब्लॉक में ऐसी तमाम पार्टियां जमा हुई जो कल तक साथ नहीं थी। कहाँ हैं आप? यहाँ हमारे एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कुलगाम की असेंबली सेगमेंट। जब हमने इलेक्शन लड़ा डिस्ट्रिक्ट, वो जो DDC के, आप बताइए, PDP ने भी खड़े किए और दूसरों ने भी खड़े किए, वहाँ वो अलायंस कहाँ गई थी? उस वक्त हमने फिर भी कहा ये इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, लड़े DDC पर आपस में, लेकिन असल मुद्दे अलग हैं। आज भी मैं यही कहता हूं कि अगर इंडिया ब्लॉक का फैसला है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, और जो इकाइयां हैं उनको भी चाहिए था मुफाद आमा को देखते हुए वो भी इसी समर्थन में, इसी दिशा में आगे। तो नाजरीन, इस खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।